Hello everyone, good morning. Welcome you all in the next lecture of FMIS. Today in this lecture we study about the money market and the capital market. As we all know about the financial market is divided into two parts mainly. We have primary market and we have secondary market. Right? So primary market and secondary market are the base of the financial market, and we have some other small markets also. We have money market and capital market. Right? So in today's lecture we study about the money market and capital market. Now, what is a money market? The money market is a component of the economy which provides short-term funds. The money market deals in short-term loans generally for a period of less than or equals to 365 days. Right? हमें अलग अलग टाइम पीरियड पे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वो चाहे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हो चाहे वो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए. राइट? तो जब हमें शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, कैश की ज़रूरत होती है, तब हम मनी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू पे जाते हैं. मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड किए जाते हैं जिनमें हायर लिक्विडिटी होती है. राइट? और हाई लिक्विडिटी का मतलब कि हम जैसे ही वो इंस्ट्रूमेंट्स को सेल ऑफ करते हैं हमारे पास कैश इन हैंड तुरंत आ जाता है. मनी मार्केट में हम वो इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड ऑफ करते हैं जिनकी मैच्योरिटी पीरियड होती है विद इन अ ईयर. Right? Those financial instruments which have the maturity period less than or equals to 365 days, that financial instruments are traded in the money market. Basically, they provide short-term funds so that our need for short-term funds has been entertained. Right? A market for short-term financial assets that are close substitute for money facilitates the exchange of money in primary and secondary market. Basically, money market is a market which is for short-term financial asset जिन्हें हम सेल ऑफ भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, and they have the exchange of money in the primary and secondary market. Right? It is a mechanism that deals with the lending and borrowing of short-term funds. हमारे मनी मार्केट में जितने भी शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं उनको आप सेल ऑफ कर सकते हो, उन्हें आप ख़रीद सकते हो, बोरो कर सकते हो एंड लेंड कर सकते हो. राइट? सो बेसिकली मनी मार्केट इज़ अ मार्केट इन विच दोज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड विच हैव हाई लिक्विडिटी इन नेचर and also they have the maturity period of maximum of 1 year. Right? Money market is a segment of the financial market in which financial instruments with high liquidity and very short maturities are traded. अभी हमने बात की इस बारे में. It does not actually deals in cash or money, but it deals with substitute of cash like trade bills, promissory notes,
and government papers which can convert it into cash without any loss at low transaction cost. मनी मार्केट में वो इंस्ट्रूमेंट्स आपके डील किए जाते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड बहुत ही छोटा सा होता है कि आपने उनमें ट्रेडिंग की, राइट, उनकी मैच्योरिटी वैल्यू आपको विद इन अ ईयर जब वो मैच्योर हुए आपको पैसा मिल गया। ये डायरेक्टली कैश में डील नहीं करते हैं बल्कि कैश के सब्स्टिट्यूट में डील करते हैं। एग्जांपल्स of money market instruments are you have your promissory notes, commercial bills, commercial papers, we have trade bills and government papers, जहाँ पे easily ये सारी चीज़ें कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं और इनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ही कम होती है, राइट। नाउ इट इंक्लूड्स all individual, institutions and intermediaries. Okay, now next we have what are the features of money market. Number 1, it is a market purely for short term funds or financial assets called near money, राइट। अभी हमने जैसे बात की, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द मार्केट इज ऑलवेज डील्स विद शॉर्ट टर्म फंड्स और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स। नंबर 2, इट डील्स विद फाइनेंशियल एसेट्स दैट हैव अ मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 year only। जिन फाइनेंशियल एसेट्स का मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होता है वही फाइनेंशियल एसेट्स को मनी मार्केट में डील किया जाता है। अगर 1 year से ज़्यादा का टाइम है आपके मैच्योरिटी पीरियड में, आपके फाइनेंशियल एसेट्स के मैच्योरिटी पीरियड में, तो वो मनी मार्केट में डील नहीं किया जाएगा, राइट। नंबर 3, ट्रांजैक्शंस हैव टू बी कंडक्टेड विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रोकर्स। व्हाट इज़ अ ब्रोकर? ब्रोकर वो इंटरमीडिएट पर्सन हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बाइंग या सेलिंग करने में इन द फाइनेंशियल मार्केट। इस बात के लिए, इस काम को करने के लिए वो कुछ अमाउंट आपसे लेते हैं एंड दैट अमाउंट इज नोन एज now. The next point is the transaction have to be conducted without the help of brokers. What is a broker? A broker is an intermediary person which helps the clients or the customers for the buying and selling of their financial assets in the financial market. इस काम को करने के लिए ब्रोकर्स आपसे कुछ पैसा लेते हैं एंड दैट मनी इज नोन एज द ब्रोकरेज, राइट। बट इन द मनी मार्केट द ट्रांजैक्शंस हैव टू बी कंडक्टेड विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रोकर्स, so you don't have to pay any brokerage amount to anyone, right? Next is, in money market transaction cannot take place like stock exchange, only through oral communication, relevant document and written communication transaction can be done, right? In money market transactions, यहाँ पे हम स्टॉक मार्केट
तरह डील नहीं करते हैं, जहाँ पे ब्रोकर्स इन्वॉल्व हैं जो कि आपकी हेल्प कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम थ्रू ओरल कम्युनिकेशन, थ्रू रिटन कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज द कंपोनेंट ऑफ मनी मार्केट आर द कमर्शियल बैंक्स, acceptance houses and NBFCs. Right? Now we move to the next slide. What are the objective of money market? Point number 1, to provide a parking place to employ short-term surplus fund. First and the most important and the primary objective of money market is to provide the surplus funds which are for short period. Number 2, to enable the central bank to influence and regulate liquidity in the economy through its intervention in this market. इसका मतलब है कि आपका जो सेंट्रल बैंक है यानी कि RBI, दैट इज़ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ये रेगुलेट करता है आपकी इकोनॉमी में लिक्विडिटी को, सो दैट कि मनी मार्केट में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी हेल्प से आपको 1 साल के अंदर कैश प्रोवाइड हो जाए। राइट? हम इन्वेस्टमेंट ही क्यों कर रहे हैं मनी मार्केट में? दैट कि हमारे पास 1 साल के अंदर कैश हमें मिल जाए, हमें ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में वेट ना करना पड़े। नंबर 3, to provide a scenario for overcoming short term deficits. अब आपको अगर सरप्लस फंड्स की ज़रूरत है, आपको 1 साल के अंदर आपके पास कैश इन हैंड जनरेट हो रहा है, तो जो भी आपके टाइम टू टाइम कुछ डेफिसिट्स हो रहे हैं, कुछ आपको लोन्स वापस करना है, कुछ पैसा आपको वापस करना है जिनसे आपने ये चीज़ें ली हैं, कुछ फाइनेंशियल ली है, तो वो आप इसमें करते हैं। राइट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मार्केट। राइट? नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स अगर आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए अगर आपके पास पैसा आ रहा है, पैसे की कमी नहीं हो रही है, तो आपके साथ साथ आपका ट्रेड, आपका बिजनेस भी डेवलप कर रहा है, आपके बिजनेस के साथ साथ बिजनेस इंडस्ट्री भी डेवलप कर रही है एंड ओवरऑल इकोनॉमी भी डेवलप कर रही है। Next is the development of the capital market. Next is the smooth functioning of commercial banks, because commercial banks provides the loans and the financial instruments which are deals in the money market. Effective central bank control. Next is the formulation of suitable monetary policy. Right? Overall अगर हमारे पास मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स विद हाई लिक्विडिटी हैं, तो इसका मतलब आपके पास कैश इन हैंड की प्रॉब्लम नहीं होगी, और जब आपके पास और आपके बिजनेस के पास कैश इन हैंड की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ओवरऑल आपकी भी ग्रोथ होगी एंड आपकी इकोनॉमी की भी ग्रोथ होगी, आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी एंड ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर जो इस मनी मार्केट में इन्वॉल्व हैं उनकी फंक्शनिंग भी बहुत अच्छी तरीके से होगी
controlling by the central bank is also very effective, and they can make their monetary policy as they needed, right? Now this is all about your money market, right? Now we move to the next topic, and that is interest rate and return. Now first, what is an interest rate? से सपोज करिए कि आपके पास 1000 रुपीज़ है, राइट? आपने अपनी किसी भी फैमिली मेम्बर या फिर अपने किसी भी फ्रेंड सर्कल को उसको हेल्प करने के लिए 1000 रुपीज़ दिए, राइट? एंड विद इन अ टाइम पीरियड आपने उन्हें कहा कि ठीक है, आप मुझे ये 1000 रुपीज़ आफ्टर 2 मंथ्स लौटा दीजिएगा, राइट? विद एन एडिशनल अमाउंट। वो एडिशनल अमाउंट क्या होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आप उनसे कुछ भी ना लें, बट ये भी हो सकता है कि आप उनसे कुछ अमाउंट चार्ज भी करें। सो दैट अमाउंट विच हैज़ बीन चार्ज ऑन दैट प्रिंसिपल अमाउंट विच हैज़ बीन गिवन बाय यू एज अ हेल्प फॉर योर फैमिली मेम्बर्स और फॉर योर colleagues and all, that rate of amount is the interest rate, right? So basically it is an amount a lender charges for the use of asset expressed as the percentage of the principal. asset क्या हुआ? जो भी हमने आपको 1000 रुपीज़ दिए, या अगर हमने कोई एक एसेट ही दे दिया विच इज़ इन अ फिजिकल फॉर्म, राइट? चाहे वो आपको घर हो, चाहे वो आपकी गाड़ी हो, चाहे वो आपकी एक बिल्डिंग हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, राइट? तो दैट प्रिंसिपल अमाउंट में जो भी हम अमाउंट एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं विच इज़ एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज, दैट इज़ अ इंटरेस्ट रेट, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ नोटेड ऑन एन एनुअल बेसिस एंड एज दी एनुअल परसेंटेज रेट। अब अगर सपोज़ कीजिए कि मैंने एक बिल्डिंग रेंट पे दी है, राइट? या फिर मैंने एक बिल्डिंग को लीज पे दिया हुआ है, तो एनुअली हम उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ it is essentially a rental or leasing charges to the borrower for the use of an asset, जैसे अभी हमने आपसे बात की इस बारे में। नेक्स्ट इज़ इन द केस ऑफ द लार्ज एसेट, अगर कोई बहुत बड़ा एसेट है सच एज अ व्हीकल और अ बिल्डिंग, द लीज रेट सर्व एज द इंटरेस्ट रेट। वहाँ पे इंटरेस्ट रेट की जगह पर लीज रेट अप्लाई किया जाता है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन द बोरोवर इज कंसीडर्ड टू बी लो रिस्क बाय द लेंडर, द बोरोवर विल यूजुअली बी चार्ज्ड a low interest rate, राइट? जब भी बोरोवर जो है वो कोई एक ऐसी एसेट को लेंडर से बोरो करता है जिस पे रिस्क जो है वो कम इन्वॉल्व है, मतलब उस पर ख़राब होने के चांसेस कम हैं, या अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो उस पर उसकी वर्किंग हैम्पर होने के चांसेस कम है, मीन्स द ओवरऑल द रिस्क इन्वॉल्व इज़ वेरी लो, देन द बोरोवर विल यूजुअली बी चार्ज अ लो इंटरेस्ट रेट। तो हम उनसे कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। बट इफ़ द बोरोवर इज़ कंसीडर्ड हाई रिस्क, द इंटरेस्ट रेट दैट दे आर चार्ज्ड विल बी हायर, राइट? बट अगर वहाँ पे हाई रिस्क इन्वॉल्व है तो इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होगा, राइट? जैसे सपोज़ कीजिए कि हमने किसी को 500 रुपीज़ अगर हमने दिए हैं, राइट, 2 मंथ्स के लिए, तो उसमें रिस्क कम इन्वॉल्व होता है कि भाई ठीक है 500 रुपीज़ दे के अगर कोई
हो भी गया इंसान, नहीं वापस किया उसने, तो चलो ठीक है, इट इज़ ओनली फॉर दी 500 रुपीज़। बट अगर आपने उसी जगह पर 5 लाख रुपीज़ किसी को दिए हैं तो रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, राइट। सो इंटरेस्ट रेट भी उसी के अकॉर्डिंग आपका लो या हाई होगा, राइट। नेक्स्ट वी हैव व्हेन आर इंटरेस्ट रेट अप्लाई। इंटरेस्ट रेट अप्लाई कब करते हैं? They are applied to most lending or borrowing transactions. The individuals borrow money to purchase home, fund projects, launch or fund business, or pay for college tuition. Right? बेसिकली ये सभी लेंडिंग या बोरोइंग ट्रांजैक्शन में अप्लाई किया जाता है। आपके अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं आपके लोन्स को लेने के लिए। आपको घर खरीदना है, आपको कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, बच्चों की ट्यूशन फ़ीस देनी है, कॉलेज फ़ीस देनी है, वॉट एवर इज़ द क्राइटेरिया, राइट। बिजनेस टेक लोन्स टू फंड कैपिटल प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपैंड देयर ऑपरेशंस by purchasing fixed and long-term asset such as land, building and machinery, right? Business corporates क्यों लोन्स लेते हैं? सो दैट कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा कर सकें, अपने ऑपरेशंस को इंक्रीज़ कर सकें, इन्हांस कर सकें, फॉर द परचेजिंग ऑफ देयर लॉन्ग टर्म एसेट्स और by purchasing the fixed asset such as the land, building and machinery. Borrowed money is repaid either in a lump sum by a predetermined date or in a periodic installment. जो भी पैसा आपने बोरो किया है या तो आप उसको एक प्रीडिटरमाइंड डेट के साथ एक साथ रीपे कर दीजिए और या फिर इंस्टॉलमेंट में भी हम उसको वापस कर सकते हैं, राइट। नाउ फॉर एग्जांपल, इफ एन इंडिविजुअल्स टेक आउट $300,000 mortgage from the bank and the loan agreement stipulates that the interest rate on the loan is 15%. This means borrowers will have to pay the bank the original loan amount of $300,000 plus 15% of that principal amount, that is $300,000, which is equal to $300,000 plus $45,000, that is equal to $45,000, right? So basically in total the borrower has to pay $345,000, right? This is the calculation of basically the interest rate, how you calculate the interest rate. And also if we talk about the return, then interest rate is the most important criteria which has been added on the principal amount, and the return which is associated is directly associated with the risk which is involved in borrowing that asset, right? So basically the interest rate and the return is very much close to each other, right? So here we study the types of financial instruments in detail. So the types of financial instruments we have, number 1 is deposits, number 2 borrowings, number 3 loans, number 4 shares and other liquidity, number 5 debentures, number 6 bonds, number 7 financial derivatives, number 8 letter of credit, number 9 financial commitments, and the last one is but not the least
is debt securities. Now, what are the deposits? It is the act of placing cash with some entity such as a bank. हम लोग जनरली अपने कैश इन हैंड बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं सो दैट हमें उसमें से कुछ इंटरेस्ट रेट मिले, कुछ हमें रिटर्न मिले. सो इट इज़ जनरली नोन एज अ डिपॉजिट. What are borrowings? Borrowings is basically to receive money from another party with the agreement that the money will be repaid. आप किसी से भी पैसा बोरो करते हो, कुछ उधार पे लेते हो, राइट? तो वो एक एग्रीमेंट होता है कि हम आपसे हमने जितना भी पैसा लिया है हम उसको आपको वापस रिटर्न बैक करेंगे, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट बोरोअर्स बोरो एट इंटरेस्ट. They pay a certain percentage of the principal amount to the lender as compensation for borrowings. कुछ borrowers जो हैं वो इंटरेस्ट रेट पे बोरो करते हैं कि जो भी हम प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर आपको कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट का दे के हम उसको बोरो करेंगे एंड आपको कुछ इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा जो है वो वापस करेंगे. नेक्स्ट वी हैव लोन्स. जैसे अभी हमने बात की लास्ट लेक्चर में कि लोन्स जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो हमारी अपनी की नीड्स के लिए हम लोग लेते हैं. अगर हमें पर्सनल लोन की ज़रूरत है, होम लोन की ज़रूरत है, राइट, मेडिकल एक्सपेंस की ज़रूरत है, ऑटो लोन चाहिए, किसी भी तरीके का लोन चाहिए. Basically, it is a form of debt which incurred by an individual or other entity. The lender advances a sum of money to the borrower. In return, the borrower agrees to a certain set of terms, including any finance charges, interest, रीपेमेंट डेट एंड अदर कंडीशंस. हम जब भी नॉर्मली लोन्स अप्लाई करते हैं इन एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इन एनी वेयर, राइट, तो हम कुछ सम ऑफ मनी हमें चाहिए होता है. उसके रिटर्न में हम उन्हें इंटरेस्ट के साथ साथ कुछ फाइनेंस चार्जेस जो है जो कि इम्प्लाई किए जाते हैं विद इन अ शेड्यूल डेट ऑफ टाइम एंड अदर कंडीशंस के साथ हम उन्हें रीपे करते हैं, राइट. नेक्स्ट वी हैव शेयर्स एंड अदर लिक्विडिटी. दे आर बेसिकली द यूनिट्स ऑफ ओनरशिप इंटरेस्ट इन अ कॉर्पोरेशन और फाइनेंशियल एसेट that provide for an equal distribution in any profit. शेयर्स की बात जब हम करते हैं तो बेसिकली हम अलग अलग कंपनीज के शेयर्स, डिवेंचर्स या बॉन्ड्स इन सबको हम खरीदते हैं और जब हम इन्हें खरीदते हैं तो जो भी हमें इसका रिटर्न मिलता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. We have two types of shares. Basically, we have common share and preferred shares. Now, what are debentures? It is a type of debt instrument that is not backed by any collateral and usually has a term greater than 10 years. Basically, आपके डिवेंचर्स जो है वो गवर्नमेंट या कॉर्पोरेशन जो है वो इशू करते हैं फॉर दी रेजिंग ऑफ अ कैपिटल, जिनकी लाइफ स्पैन जो है वो 10 ईयर्स से ज़्यादा का होता है. बोथ कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट्स फ्रीक्वेंटली इशू डिवेंचर्स टू रेज कैपिटल और फंड्स.
Next we have bonds. Bonds is a fixed income instrument that represent a loan made by an investor to a borrower. ये एक फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं। जब बॉन्ड की मैच्योरिटी वैल्यू कंप्लीट हो जाती है तो हमें इंटरेस्ट के साथ कुछ रिटर्न हमें मिलता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर यूज्ड बाय कंपनीज, म्यूनिसिपैलिटीज, स्टेट्स टू फाइनेंस प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशन। बेसिकली कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए, कुछ अपने ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए कंपनीज जो हैं वो बॉन्ड्स इशू करती हैं। ओनर ऑफ बॉन्ड्स आर डेट होल्डर्स और क्रेडिटर्स ऑफ द इशू और दे आर नोन एज बॉन्ड होल्डर्स। नेक्स्ट वी हैव what is a letter of credit? It is a letter which is issued by a bank to another bank, especially one in a different country, to serve as a guarantee for payments made to a specified person under specified conditions. लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली बैंक की तरफ से इशू किया जाता है किसी और बैंक को जो कि दूसरी कंट्री में होते हैं। ये गारंटी होता है कि आपकी पेमेंट जो है वो स्पेसिफाइड कंडीशंस में डिज़ायर्ड पर्सन के थ्रू आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट इज़ योर डेट सिक्योरिटीज़। They are the debt instruments such as government bonds, corporate bonds, certificate of deposit, municipal bond or preferred stock that can be bought or sold between the two parties and has the basic terms defined such as notional amount, which is the amount which is to be borrowed, interest rate and maturity and renewal date. बेसिकली डेट सिक्योरिटीज़ जो हैं वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में होते हैं एंड दे कैन बी बॉट और सोल्ड बाय इन बिटवीन द टू पार्टीज़, जहाँ पे आपकी ये डिफ़ाइन की गई हैं चीज़ें कि उनकी मैच्योरिटी डेट क्या होगी, रिन्यूअल डेट क्या होगी, इंटरेस्ट रेट कितना होगा, ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन की गई, राइट। सो बेसिकली इन दिस लेक्चर वी अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन डिटेल। वी हैव लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वी हैव deposits, we have financial derivatives, we have borrowings, we have loans, shares, debentures, bonds, right? Financial commitments. Financial commitment is basically कि जहाँ पे दो पार्टीज़ के बीच में आइदर रिटर्न और फॉरवर्ड एक कमिटमेंट होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेके कि हम आपको इतना पैसा इतने टाइम पीरियड के लिए दे रहे हैं, आप इस डेट ऑफ मैच्योरिटी पे, इस रिपेमेंट डेट पे हमें आप वो वापस कर दीजिए, राइट। तो बेसिकली दे आर दी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, बेसिकली आर दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विच आर हैज़ बीन टेकन प्लेस इन बिटवीन दी टू parties, right? So multiple financial instruments which has been traded in the financial market. Let's talk about the financial instruments in brief. First of all, what do you mean by financial instruments? Financial instruments are assets that can be traded or they can also be seen as package of capital that may be traded.
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली आपके एसेट्स होते हैं जिन्हें ट्रेड किया जाता है फाइनेंशियल मार्केट में। उन्हें ख़रीदा जाता है, उन्हें एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बेच दिया जाता है। जो भी हमें उससे रिटर्न मिलता है वी गेट दी एज पर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वी गेट द डिज़ायर्ड रिटर्न। वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कोई एक शेयर भी हो सकता है, कोई एक लॉट हो सकती है, या फिर मल्टीपल चीज़ों का पैकेज भी हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव द मोस्ट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स that provide efficient flow and transfer of capital all throughout the world's investors. बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जब भी हम अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो वो कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र किया जाता है। एंड ओवरऑल जितने भी इन्वेस्टर्स हमारे पास हैं वो उन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। A financial instrument is a real or virtual document representing a legal agreement involving any kind of monetary value. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली आपके रियल या वर्चुअल डॉक्यूमेंट होते हैं। एक लीगल एग्रीमेंट है जहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू दी गई है जिन्हें हम सेल ऑफ करते हैं या फिर बोरो करते हैं। दे आर द कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू फाइनेंशियल एसेट टू वन इक्विटी and a financial liability or an equity instrument to another entity. Basically, it is a contract between two parties जिसमें एक के लिए फाइनेंशियल एसेट एक इक्विटी है जो उसे खरीद रहा है और एक के लिए एक एंटिटी के लिए वो एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। Divided into two types. We have cash instruments and we have derivatives instruments. It is a monetary contract created by two or more parties which can be transferred, traded, modified and settled with cash. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपके दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, कैश एंड डेरिवेटिव्स। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में होता है जहाँ पे आपका कैश का ट्रांजैक्शन होता है, आइदर ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रेडिंग की जाती है, मॉडिफाइड किया जाता है और या फिर कैश में सेटलमेंट किया जाता है। राइट। नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर द नेचर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सो बेसिकली हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या समझा? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपके वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बेसिकली दे आर द एसेट्स which has been traded in a financial market. Right? They are of two types, cash instruments and derivative instruments. Now, what are the nature of financial instruments? Number one, they are derived due to demand for and supply of capital. पैसे की डिमांड हो हमारे पास या हमें पैसे की सप्लाई करनी हो, मतलब अगर हमें पैसा चाहिए हो
या हमें पैसा किसी को देना हो, वहाँ पे हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। नंबर 2, पेपर बेस्ड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एज एन एसेट और लायबिलिटी। आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑन पेपर्स भी हो सकता है, पेपर बेस्ड भी हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी या डीमैट फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे हम लोग शेयर्स पहले फिज़िकल फॉर्म में रखते थे, अब वो चीज़ आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गई है। डीमैट अकाउंट खोला जाता है जहाँ पे, वहाँ पे आप उसको अपने शेयर्स को, अपने डिबेंचर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। Number 3 is the obligations of both the parties are governed by regulators. Right? Rules and regulations के साथ कुछ governing bodies हैं जो कि आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करती हैं। तो जो भी आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आपके सेल या परचेज़ हो रही है, उन्हें देखना, उन्हें गवर्न करना रेगुलेटरी बॉडीज़ का काम है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द लिक्विडिटी ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा, आपके पास कितना पैसा है, कैश इन हैंड के फॉर्म। बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की लिक्विडिटी मीन्स इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। लेस इज द टाइम इन दिस प्रोसेस, मोर इज द लिक्विडिटी। आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, ये एबिलिटी बताता है कि आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कितना लिक्विड है। जितने कम टाइम में ये प्रोसेस होगा, इसका मतलब उतनी ही ज़्यादा लिक्विडिटी है आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया, द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज इशुअर लिक्विडिटी एंड बायर लिक्विडिटी। What are the types of financial instruments? Basically, we have two types of financial instruments. We have money market instruments and we have capital market instruments. Financial instruments में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं? We have number 1, deposits, जो नॉर्मली हम लोग बैंक्स में डिपॉजिट्स करते हैं, अपना कैश, अपना गोल्ड, राइट? दीज आर ऑल डिपॉजिट्स, वन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट वी हैव बोरोइंग्स। आपने कितना पैसा मार्केट से बोरो किया है, कितना पैसा है आपके पास कैश में, दीज आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। लोन्स कितना आपने लिया है एज पर योर नीड फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। शेयर्स एंड अदर लिक्विडिटी, एंड द लास्ट वन इज़ योर डिबेंचर्स। बेसिकली ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वी हैव डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स, लोन्स, शेयर्स एंड अदर लिक्विडिटी, डिबेंचर्स, ये सारी चीज़ें आपकी वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें ज़्यादा लिक्विडिटी है। मीन्स ये जल्दी से जल्दी जो है वो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट? Next we have bonds, financial derivatives, we have letter of credit, financial commitments, and then we have
debt securities. Basically, all these are the types of financial instruments which can be bought or sold in any form and gives you the cash on the home. Right? So, in this lecture, we study what is a financial instrument, what are the meaning of financial instruments, what are the types of financial instruments, and what is the nature of the financial instruments. Right? So I hope this given lecture is